I'm 18-year-old guy living in Karachi. I'm a freelance employee who makes around अच्छी amount for an 18-year-old. I just turned 18 this August. I am highly serious about my career and goals, and I prioritize it over any other thing. The problem is I don't have any friends. I don't go out, not even in my gali mohalla. I'm sitting in front of my computer desk all the time, working tirelessly. I feel jealous whenever I see young dudes of my age chilling out, having late night drives with their friends, basically enjoying their teenage years to the fullest. Whereas I rot in my room every day, every week, every month. It's just the same routine that I'm following. I feel lonely. I feel bad. That why can't I have all the fun as well? Why couldn't I have such friends with whom I can talk to anytime I want? I can go out with them whenever I want to. I force myself to work more. I push myself to work even if I don't want to, just so I don't feel this loneliness. What's the solution to this? Is this even a problem, or am I just being too emotional? I would really appreciate if you could include this email in your episode, or at least reply directly to this email. Keep producing such content for teenagers like me. You're a highly inspiring person. May Allah bless you more. So the email that was written to him was if you're expecting things to happen for you while lying in bed, that's not going to work. Let me ask you a question. Did you get a job without applying for it? You had to create a resume, prepare for the interview, and make an effort. The same level of effort is required here as well. My first advice would be to join a gym or take up a sport like basketball or badminton. Visit a court someday and try playing with the people there. You could also take up swimming if you prefer. Not only are these activities productive and great for keeping you fit, but they might also help you make friends. Most importantly, they'll get you out of your bedroom. Best wishes. So yeah, basically that is the advice. I understand the loneliness is. Again, no amount of money will bring you happiness as much as your relationships, your friendships, the people around you. Nobody on their dying bed were thinking about, oh, I made $1,500 that particular month, right? They're talking about, or they're thinking about the time they spent with their friends in Hunza, or the drive they took all the way to Urmara, और दैट वंडरफुल पिकनिक दे डेड, या ओवरनाइट बीच पे पार्टी की थी, या हम स्पोर्ट्स खेलते थे, या हमने नो सो स्पोर्ट्स इज़ अ गुड वे. जिम ज्वाइन करो, वहाँ पे you'll end up making friends, or swimming. If you like any sport, pursue that. I'm really liking this new trend जो कि इंडोर क्रिकेट का, जो नेटेड क्रिकेट जो आजकल बहुत चल रही है. मैं आई लव वॉचिंग दोज रील्स, स्पेशली कराची में. वो एक होता है बासित वर्सेस शयान वर्स मुझे उनके नाम भी याद है. वो एक दूसरे को चैलेंज करते हैं 3-3 बॉलों का या एक ओवर का, एंड बासित नॉर्मली विंस. सो गुड जॉब बासित. तो मैं वो बड़े शौक से देखता हूँ. सो आई रियली इन्जॉय के मुझे खुशी होती है कि यार बच्चे अब दोबारा बाहर निकलने लगे. सो दे केम अ फेज जब ये गैजेट्स आए एंड दे ब्लू अप, एंड स्नैपचैट एंड दिस एंड दैट, और फिर सब फोन्स पे लगे. बट आई थिंक ये जो नई जनरेशन जेन अल्फा इज रियलाइजिंग कि नहीं भाई, वी नीड टू बी मोर आउटडोर्सी एंड वी नीड टू प्ले मोर स्पोर्ट. आई फॉलो अ लॉट ऑफ पीपल हेयर एंड देयर. तो मैं देखता हूँ जिम फ्रीक्स बहुत हैं उसमें, बैडमिंटन खेलने वाले बहुत हैं, स्विमर्स बहुत हैं. इट्स गुड टू हैव एन एक्टिविटी बिकॉज दैट्स समथिंग यू लुक फॉरवर्ड टू, दैट्स समथिंग यू प्रिपेयर योरसेल्फ टू. और उसके बाद खुशी बड़ी होती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं उस दिन इस्लामाबाद में आई केम अक्रॉस वो जो गाना है वॉकिंग ऑन अ ड्रीम, किसका गाना है, एम्पायर ऑफ द सन का गाना है. तो मुझे वो गाना याद है, और उस गाने से एक खुशी रिलेटेड है कि लास्ट ईयर जब मैं लाइक रेगुलरली आई वाज गोइंग टू द जिम बिफोर आई ट्विस्टेड माय फुट, तो मैं वो आई डिड माय थिंग और मैं वापस घर जा रहा था. आई वाज लिसनिंग टू दैट एंड आई वाज जेन्युइनली हैप्पी बिकॉज व्हेन यू वर्क आउट, व्हेन यू रन, तो वो आप बहुत अच्छा फील करते हो, यू फील यूजफुल. तो वो दैट्स अ गुड वे टू डू इट. एंड जहाँ आप हो, आप कराची में हो, तो कराची में तो इस तरह की एवेन्यूज़ की कमी नहीं है. सो get out of the bed. वो एक गाना है, get out of my bed, get into my car, get out of my mind, get into my car. It's a fun song. Anyway, तो एफर्ट शुरू में खुद करनी पड़ेगी, जाहिर है आपको थोड़ा निकलना पड़ेगा. यू हैव टू फाइंड पीपल विद म्यूचुअल इंटरेस्ट. जो भी आपका फ्रीलांसिंग में जो आपने बताया आप करते हो, अगर उसकी कोई कम्युनिटी है, सो दोज आर लाइक माइंडेड पीपल. डू नॉट डवेल इनटू पॉलिटिक्स, यू आर टू यंग फॉर दैट. पॉलिटिक्स, मुल्क वुल, ये फिक्रें आपने नहीं करनी, छोड़ें. जिनको करनी है वो नहीं करते, तो आप क्यों कर रहे हैं? इन चीज़ों पे तो बिल्कुल टाइम ज़ाया ना करें. ये मेरी आप सबको एडवाइस है.
स्टॉप डिस्कसिंग पॉलिटिक्स, इट्स नॉट गोइंग टू ब्रिंग एनीथिंग। इससे आज तक किसी का फ़ायदा नहीं हुआ है कि जी मैं सही हूँ या मेरा लीडर सही। आपका लीडर को पता भी नहीं आप हैं कौन, आप उससे मिल सकते हो ना, आप उससे हाथ मिला सकते हो। इन लोगों के पीछे लड़ना वड़ना छोड़ दो, अपनी ज़िंदगी बेहतर करो और अपने ख्वाब देखो। इन ये देयर लिविंग देयर ड्रीम्स मैन। उनकी यही ख्वाहिश थी ना ज़्यादातर की, कि बस हमें रूल करना है और झंडे वाली गाड़ी हो और ये और वो वट। छोड़ें भाई, डोंट, नो बडी इज़ बीइंग अ हीरो हेयर। अपना अपनी ज़िंदगी पे फोकस करें। स्टॉप डिस्कसिंग दिस पीपल, इररिलेवेंट लोग हैं। इनको आप अपनी कंपनीज में क्लर्क भी ना हायर करो। आधे से ज़्यादा जो लोग जो असेंबली में बैठे हुए हैं, इनको आप ये ढंग की नौकरी नहीं कर सकते किसी ऑर्गेनाइजेशन में। आपने उनको सर पे चढ़ाया हुआ है, तो फिर वही अपने अपने कैलिबर के हिसाब से हरकतें कर रहे हैं ना। सो अपनी ज़िंदगी बिल्ड करें और ज़रा बाहर निकलें। और दुनिया बड़ी खूबसूरत है, लोग भी बड़े अच्छे हैं, मिल जाते हैं अच्छे लोग, प्रोवाइडेड आप कितने अच्छे हैं। यू ओनली सी व्हाट योर आइज वांट टू सी, मैडोना ने कहा है। सो या गुड लक। और जितने लोग लोनलीनेस का शिकार हैं, पिक अप अ स्पॉट, कुछ भी, डू समथिंग, गेट आउट ऑफ योर बेड, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग टू डू। मुझे भी व्हेन आई वाज वर्किंग फ्रॉम होम, जब मैं नया नया मूव हुआ, तो मैं दिन में सिर्फ आधा घंटा काम करता था, उसके बाद मैं पढ़ा रहता था। फिर पढ़े 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 डिप्रेशन हो गया। दैन आई गॉट एन ऑफिस कि यार मैं जूते पहन के कहीं जाऊँ, ताकि मेरे ब्रेन को ये लगे कि हाँ यार तैयार होके कहीं जाना है। और मैं ऑफिस आके कभी भी जूते नहीं उतारता, बिकॉज इट रिमाइंड्स मी, दैट डिस्कम्फर्ट ऑफ लेदर रिमाइंड्स मी कि यार आई एम एट वर्क, सो आई नीड टू बी इन अ वर्क मोड। तो ये थोड़ा सा आपको एक मिल जाता है। चेंज योर एनवायरनमेंट वेर एवर यू आर। ग्लूमी गाने ना सुने, ज़रा हैप्पी सॉन्ग सुने। गो सिट इन द सनलाइट इफ़ यू कैन इन द मॉर्निंग। ये सारी चीज़ें करें। विटामिन डी चेक कराएं, ये बड़ी ज़रूरत है भाई। हम लोग छाँव में ही रहते हैं और फिर पता चलता है एनर्जी लेवल्स लो हैं, विटामिन डी का होता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट पिक अप समथिंग। ओके, टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं, तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।